Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 6th standard maths decimal fraction chapter number 5, and the question we are going to solve is solve the following. This is the last part of the chapter in which the word problems are based on the addition and subtraction of the decimal numbers. तो यहाँ पर जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अविनाश ट्रैवल 42 किलोमीटर 365 meter by bus, 12 kilometer and 460 meter by car, and walking 640 meter. How many kilometers did he travel altogether? आपको क्या करना है कि अविनाश ने पहले थोड़ा जो डिस्टेंस है वो बस से कवर किया है, फिर उसने कार से कवर किया है, और फिर थोड़ा बहुत उसने डिस्टेंस जो है वो चल करके यानी वॉकिंग करते हुए कवर किया है. तो आपको ये बताना है कि ऑल टुगेदर उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर अप किया है. लेकिन हमारा आंसर जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में ही आना चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है हम उसको लिख लेंगे. तो यहाँ पर जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है, he traveled by bus is equals to 42 kilometer and 365 meter. That will be exactly equals to 42.365 meters. That is kilometers. Okay. Now after that, he traveled by car is equals to 12 kilometer and 460 meter. That will be equals to 12.460 kilometer. Now at the last, he traveled by walking is equals to 640 meters. That will be equals to 0.640 meters. तो यहाँ पर ये जो है मीटर नहीं आएगा, यहाँ पर हम किलोमीटर लिखेंगे इसको. ठीक है. अब यहाँ पर जो है हमारी सारी क्वांटिटीज डेसिमल फ्रैक्शन में हमने लिख ली है. अब हमको क्या करना है, इन तीनों को ऐड करके हमको फाइंड आउट करना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना चला है. तो यहाँ पर हमको लिखना है टोटल डिस्टेंस traveled is equals to question mark. This much we have written. Now after that we'll add the all three and we'll get our answer. Now here we are supposed to write down he traveled total distance is equals to 42.365, then 12.460, and the last one 0.640. Then here should be added, here should be added. Now let's go with the addition. Now here 0, 5 plus 0 plus 0, so that the 0 only, sorry 5 only, and here 6 plus 6 it's 12, 12 plus 4 it's 16, so 16 ka 6 will come over here and 1 will be go carry forward, है ना. तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 3 plus 4 7, 7 plus 6 it's 13, 13 plus 1 it will be 14 का 4, 1 will be carry forward.
So 2 plus 2, 1. 2 plus 2, 4. 4 plus 1, it's 5. And here 5. So the answer will be in total how much? 55 kilometer and 465 किलोमीटर. मतलब यहाँ पे 55 किलोमीटर और ये 465 मीटर्स होता है, लेकिन हम टोटल इसको बोलेंगे कि उसने कितना वॉकिंग किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, 55.465 या 465 किलोमीटर उसने ट्रैवल करके डिस्टेंस कवर किया है. देयरफॉर ही ट्रैवल्ड total distance is equals to 55.465 kilometer. This is our main answer. Now let us go with the second question. In the second question, Aisha bought 1.80 meter of a cloth for her salwar and 2.25 meter for her kurta. If the cloth cost 120 rupees per meter, how much must she pay the shopkeeper? आपको क्या बोला है कि अगर आयशा ने क्लॉथ लिया है अपनी सलवार के लिए 1.8 मीटर और जो 2.25 मीटर का उसने कपड़ा लिया है कुर्ते के लिए, और 1 मीटर कुर्ता अगर उसको 120 रुपए में मिला है, तो इस तरह से उसको दुकानदार को यानी शॉपकीपर को कितना पैसा देना है वो बताइए. तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, क्लॉथ फॉर द शलवार and the cloth for the kurta should be added together and that total should be multiplied together to the 120. So we will get the answer for the total cost should be paid. So like that way we'll solve the second sum. So here now what we will write down, cloth for salwar, cloth for salwar is equals to 1.80 meter. Now cloth for kurta is equals to 2.25 meter. Okay. Now what we are supposed to find out, the cost of 1 meter of a cloth, है ना, cost of 1 meter of cloth is equals to 120 rupees. ये हमारे पास दिया हुआ इंफॉर्मेशन है. अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों को पहले ऐड करना होगा. तो therefore we'll write down total cost of cloth is equals to question mark. Now therefore total cloth is equals to, अब टोटल क्लॉथ का मतलब क्या, यानी ये वाला क्लॉथ और ये वाला क्लॉथ हमको क्या करना है, ऐड करना है. तो 1.80 प्लस 2.25 विल बी एडेड टुगेदर. तो ये कितना हो जाता है, यहाँ पर देखिए 5 का 5, 8 प्लस 2 इट्स 10, तो 0, 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड, सो 1 2 3 4, सो इट विल बी 4. So 4.05 meter of a cloth she have bought. Therefore total cloth is equals to यहाँ पे 4.05 मीटर. अब इसको जो है हमको क्या करना है, 120 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा आंसर जो है वो आ जाए. किसके लिए आ जाए, कॉस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ क्लॉथ. ठीक है.
देखिए हमने इस तरह से लिखा है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू 4.05 इंटू 120 रुपीज. सो देयरफॉर 4.05 इंटू 120. नाउ लेट अस गो विद द मल्टीप्लीकेशन. सो अगर हम इसको डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे लिए आसान हो जाता है. तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस जीरो को डायरेक्टली लगाते जाएंगे. तो यहाँ पर जो है हम पहले ही एक जीरो लगा लेते हैं. फिर 12 5 60, 0, then 6 will be carry forward. So 12 zeros are 0, then 6 will come down. Okay, and then after that here 12 4s are 48. So here 12 4s are 48 हो गया. अब हमको कितने के बाद डेसिमल डालना है? 1 2. So here 1 2. So we are having the रुपीज एज 486. तो हमारा आंसर जो है एक्चुअली कितना आया है? 486 रुपीज. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ आयशा should pay is 486 rupees. Total cost of cloth Aisha should pay is 486 rupees. So like that way we have completed our second question also. Now let us go with the third one. So third question I am reading here. Sujata bought a watermelon weighing 4.25 kilogram and gave 1 kilogram 750 grams to the children in her neighborhood. How much of it does she have left? मतलब आपको क्या बता रहा है कि सुजाता ने एक बड़ा सा वाटरमेलन लिया है जिसका टोटल वेट है 4.25 किलोग्राम्स और उसमें से उसने जो है 1 किलोग्राम एंड 750 ग्राम्स जो है अपने पड़ोस के बच्चों को दे दिया है. तो उसके पास जो है टोटल कितना बाकी बचा हुआ है. तो ये एक्चुअली जो है वर्ड प्रॉब्लम है, ये सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है क्योंकि हमको जो है पूरे टोटल में से उसने बोला है थोड़ा सा निकाल करके आपके पास कितना बचता है वो बताइए. तो यहाँ पर जो है ये एक्चुअली कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? सब्ट्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है हम उसको लिखेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि वाटरमेलन का वेट क्या है, उसमें से उसने कितना निकाल दिया है, कितना दे दिया है वो लिखेंगे और उसके बाद उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. Now for the third question, what we are supposed to write down, weight of watermelon is equals to 4.25 kilograms. Part of the watermelon given to children is equals to 1.750 kilograms and watermelon she left with, मतलब उसके पास कितना जो है वो बच गया है, that will be question mark. Now what we are supposed to do, we are supposed to subtract, है ना. तो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे? watermelon she left with is equals to 4.25 kilograms minus 1.750 kilograms. अब इन दोनों को हमको क्या करना है? वर्टिकल सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करके आंसर फाइंड आउट करना है. सो लेट अस गो विद द वर्टिकल सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर जो है हम इसको वर्टिकल सब्ट्रैक्शन करेंगे. ठीक है. So here 4.250 minus 1.750. Now this we starts 0 minus 0, 5 minus 5 0, 2 minus 7 not possible. So here we are supposed to borrow, it becomes 12 and this will becomes 3. So here 12 minus 7 it will be 5 and 3 minus 1 it will be 2.
So here the answer is 2.500 kilograms. So therefore watermelon she left with is equals to 2.500 kilograms. Now the question number 4. Anita was driving at a speed of 85.6 km per hour. The road had a speed limit of 55 km per hour. By how much should she reduce her speed to be within the speed limit? Now what is given in the question? Anita was driving at a speed of 85.6 km per hour. आपको क्या बताया है कि अनीता जो है अपना व्हीकल है वो किस तरह से ड्राइव कर रही थी, 85.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, लेकिन रोड की जो लिमिट है स्पीड की वो 55 किलोमीटर ही थी। तो आपको ये बताना है कि अनीता को कितना स्पीड जो है वो अपनी कम करनी चाहिए ताकि वो स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि ड्राइविंग स्पीड ऑफ अनीता इज 85.6 किलोमीटर and the speed limit of a road is 55 kilometer per hour. So how much she had to be reduced her speed is the question which we are supposed to find out. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इस तरह से, ड्राइविंग स्पीड of Anita is equals to 85.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नाउ स्पीड लिमिट ऑफ रोड is equals to 55 किलोमीटर per hour. ठीक है। Now what should be done here? Now she have to reduce her speed. So she should reduce the speed is equals to question mark. Now after this what we are supposed to do? अब हमको इसी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। तो यहां लिखेंगे शी शुड रेड्यूस द स्पीड इज इक्वल्स टू, यहां पर 85.6 माइनस कितना आएगा 55। तो अब जो है हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर वर्टिकल सब्ट्रैक्शन में सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। नाउ हियर 85.6 देन 55.0 ये लिख लिया। अभी 6 minus 0 it will be 6 only. Now 5 minus 5 0, then 8 minus 5 it will be 3. So here 30.6. So the answer is 30.6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हम लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। So therefore she should reduce her driving speed by 30.6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर जो था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शन का ये कंप्लीट होता है। ऑल द सम्स वी हैव कंप्लीटेड। यू आर सपोज्ड टू कंप्लीट योर वर्क अकॉर्डिंगली।
और यहाँ पर जो है हमारा जब चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इसको सॉल्व करना सीखिए। और वीडियो को रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।